them we decree for the children of Israel that whoever kills a person not in retaliation for a person killed, nor as a punishment for spreading disorder on earth, as if he has killed the whole humankind. Whoever saves the life of a person as if he saved the life of whole humankind. تو ہماری تو کتاب ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آپ ایک انسان کو ناحق قتل کریں تو وہ آپ نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور آپ نے ایک انسان کہی تو آپ نے پوری انسانیت کی قتل کیا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم میں اتنی نفرت کیوں آ رہی ہے۔ دیکھیے میں اس بات سے میں نے آپ سے کہا ہے، میں نہ ہی کی عادت ہوں، نہ ہی میں ایم پی میرا فرقے سے تعلق ہے، نہ ہی میرا قادیانی فرقے سے تعلق ہے، سنی برین کی بیک گراؤنڈ ہے میرا، ٹھیک ہے۔ اب میں صرف اتنا آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیے، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں سے جینے کا حق تو رکھیے، ٹھیک ہے ان کی طرف سے بھی غلطیاں ہوں گی، بالکل میں مانتا ہوں ہوگی، اٹ ٹیکس ٹو دی کلاس، ایک انسان کبھی تعلیم نہیں بجا سکتا ایک ہاتھ سے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ اقلیت میں ہے اور وہ اپنے آپ کو مطلب جس طرح آپ کو داڑھی رکھتے ہیں، یا آپ ان کی قبریں، یا آپ ان کی عبادت گاہیں، یا آپ ان کے جو بھی وہ اپنا قربانی کرنا چاہتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جی بات کمپلیٹ ہوگی جی آپ کی۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہم تو مانتے ہیں، اور بالکل ہم تو کنڈیم کرتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو، بلکہ جو ذمی ہوتے ہیں نا جن کو ہم منورٹی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے امت کو تلقین کی ہے کہ منورٹی کے رائٹس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو ہم تو اس چیز کو مانتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو، جو کسی کو ناحق قتل کرے۔ کیا آپ ان احمدی لوگوں سے کنڈیم کروا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہی بندے نے ایک احمدی کو قتل کیا اور ان کی پوری جماعت بشمول ان کے خلیفہ انہوں نے پاکستان کو بدنام کیا، قتل انہوں نے خود کیا؟ کیا یہ مانتے ہیں کہ وہ انسانیت کے قتل کے مترادف تھا اور پھر بلا وجہ پاکستان کو بدنام کیا گیا؟ یہ نہیں کریں گے کنڈیم۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو تمام رائٹس دیے ہوئے ہیں، آپ کو یہ کس نے غلط فہمی ڈالی ہوئی ہے؟ سوال صرف اتنا ہے کہ یہ پبلکلی نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ جب آپ خود بتائیں کہ پبلکلی ایک بندہ کتاب اٹھا کے آپ کو کہے گا کہ بھئی جو مرزا صاحب پر ایمان نہیں لاتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، کیا آپ اس کو کرنے دیں گے؟ اس سے فساد نہیں پھیلے گا؟ چھوڑ دیں وہ ان حوالوں پہ نہ جائیں، میں یہی عرض نفرت کر کر رہا رہی ہوں ہیں۔ نا اصل معاملہ ہی یہی ہے نا، پرابلم یہ ہے کہ یہ چیزیں یہ کرنا چاہتے ہیں، آقا بھائی میں آپ سے یہی یہ آقا چاہتے ہیں بھائی کہ ہمیں ان چیزوں کی اجازت دے۔ آقا بھائی مجھے آپ یہی بات نہیں سنیے۔ نہیں، یہ انہوں نے کہ سپوز مسئلہ چھوڑ سپوز دیں۔ میں مجھے ایک ذرا منٹ باقی جواب وکیل دے صاحب سارے دیتے، چھوٹا جو سا آپ پوائنٹ، مجھے جواب دے دیں۔ وکیل صاحب ہاں ایک جی مجھے چھوٹا سا جواب دے پوائنٹ، دیتے۔ صحیح دیکھیں ایک ابھی منٹ چھوٹا سا ٹائم نہیں ہے، چھوٹا مجھے سا جانا ہے 15 منٹ میں میرے پاس، آپ مجھے یہ بتائیں آقا اور وہ بھائی، 15 منٹ میں اگر کلیئر وہ وہ یہ لوگ غلط کلیئر کرتے کرنا ہے۔ بھی ہیں اور یہ غلط عقائد ہے بھی، لیکن ہم کیا پیار سے اپنے طرز عمل سے ان کو اس طرح متاثر نہیں کر سکتے کہ وہ یہ غلط کام چھوڑ دیں؟ میں ایک سپوزیشن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ جی ہم جی ان کو، وہ دیکھیں، دیکھیے آقا بھائی، بجائے اس کے کہ ہم ان کو ایلینیٹ کریں، ہم ان کو سینے سے لگائیں گے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ میرے بھائی اپنے دیکھیں، نمائندے سے سوال نہیں آپ کا کرتے جو ہیں۔ کویسچن ہے نا، آپ ابھی اچھا یار ابھی جسٹ اگر آپ ابھی براٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ دیر سے، تو آپ ادھر سے ہی ان کے رویوں کا اندازہ کر لیں۔ کیا ہماری زبان سے ہمارے کسی ایک بھائی نے بھی کوئی ایسی بات کی ہے وائلیشن والی، کو وائلیٹ کرنے والی، کوئی دہشت گردی والی، یا ان سے کوئی نفرت سے ہم نے بات کی ہو؟ ان کی ایک ایک لفظ آپ دیکھ لیں، انہوں نے یہاں تک کہا ہوا ہے اس براڈ میں کہ ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے یہ نان سینس ہے۔ بھائی بھائی ان کو وائلنس آپ والی سمجھائیں نا بات کہ وہ اپنے آپ کو یہ آپ ایک انسانیت کے دائرے میں لے کے آئیں، آقا بھائی کسی نے نہیں کہا۔ بنیادی انسانی اچھا حقوق کا وہ خیال کریں۔ ہاں جی میں ٹھیک، بالکل آپ کی یوڈا بات بھائی سے پلیز یار آقا ختم کر دیں بات، مجھے آگے بھی جانا ہے، میں نے بات کرنی ہے اس پہ، جی آپ اوکے، ویسے بھی تھینک یو حکیم صاحب وکیل مجھے صاحب، ذرا بہت شکریہ۔ موقع دیں۔ جی جی ختم نبوت بھائی آپ بات کر لیں، جی آپ بات کریں۔ ہاں جی بات یہ ہے کہ یہ جو حضرت ہے سبز نشان والے آقا کا غلام، یہ پرانے کھلاڑی ہیں، اور یہ جو ہیں ہماری کتابوں میں سے حوالے غلط پیش کرنے کے ماہر ہیں۔ میں تجربے سے یہ بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ میں نے کہا تھا کہ ان کا اختیار ہی چیلنج ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب نام پیارے نام اللہ کے ہیں، تو کسی نام سے بھی ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا جو کوئی حمد کرتا ہے اس کی حمد قبول کرتا ہے۔ اگر مشرک بھی قربانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں روکتا کہ قربانی نہ کرے، بلکہ کہتا ہے کہ تم ایک حصہ اللہ کے نام پہ قربانی کرتے ہو، ایک حصہ اپنے بتوں کے نام پہ قربانی کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ روک ہی نہیں رہا۔ جب میں قرآن پڑھتا ہوں، کیونکہ ان کو یہ میں دلائل نہیں دی ہوئی، تو میں یہ اب دوبارہ دہرا رہا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے، جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے، قرآن میں بطور انسان مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں
कि रसूल है और एक मैं भी उनमें इंसान हूँ। तो जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तो मुझे इनका हज़रत का नामो निशान नहीं मिलता कि ये फैसला करेंगे कि मैं नबी की सल्लल्लाहु की तरफ अपने आप को मंसूब कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो इनका इख्तियारी चैलेंज हो जाता है, ये इख्तियार अपना पहले तो इख्तियार जो है वो साबित करे ना कि मुझे इख्तियार है कि मैं फैसला करूँगा, मैं कहूँगा कौन अपने आप को मुसलमान करे या नहीं के। दूसरी बात ये है कि इनका अपना इस्लाम, हम जिस इस्लाम की तरफ अपने आप को मंसूब करते हैं भाई वो आपके इस्लाम की तरफ अपने आप को नहीं मंसूब करते। आपको आपका इस्लाम मुबारक हो, हम अपने आप को मंसूब करते हैं उस एक इस्लाम की तरफ जो नबी की वसल्लम लेके आए थे। वो 73 टुकड़ों में बटे हुए इस्लाम की तरफ हम अपने आप को मंसूब नहीं करते। तो आपके काफी राट की वायलेशन भी नहीं होती, क्योंकि अगर देखें अगर आप एक गाड़ी मुकम्मल देते हैं एक बंदे को और 10 साल बाद आपको पता चलता है कि उस गाड़ी के तो 75 टुकड़े हुए हैं। थोड़ा सा चाहिए कि आप लफ्ज़ अपने थोड़े मुलायम रख लें। देखिए हमें दोनों साइडों से ये गुजारिश है कि दोनों साइडों से कि यार जो इखलाक है और जो लफ्ज़ है इनसे बड़ा फर्क पड़ता है। तो अगर हम बात भी कर रहे हैं ना तो हमें चाहिए कि हम बात जो है वो इन सब को मिला करें ताकि सख्ती ना आए। अच्छा चले ठीक जी चलें ठीक है भजन 2 मिनट रहेगी। मैं ये कह रहा था कि हम उस इस्लाम की तरफ अपने आप को तुमको ना रुके तुम अपनी बात कर। हाँ जी मैं ये कह रहा था कि भाई साहब भाईजान हम आपकी इस्लाम की तरफ अपने आप को मंसूब नहीं करते जो 75, 76, 80 टुकड़ों में बटा हुआ है। हम उस इस्लाम की तरफ अपने आप को मंसूब करते हैं जो नबी की वसल्लम लेके आए थे, वो एक था। तो लिहाजा ना आपको ये भाई ये बात फिर गलत बात कर रहे हैं। इसकी वजह ये है यार आप पहले बहस कर ले, बाकी लोग जिन्होंने हाथ खड़ा किया ना वो कुछ चलेगा नहीं ठीक है। लेकिन मैं दलील दे रहा हूँ कि भाई हम आपका इतराज ही गलत है, आपका इख्तियार ही चैलेंज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं आगे चलता मुझे मैं कभी कुछ फोन नहीं कर रहा कि मेरे पास मैं सिर्फ जो लोगों के हाथ में आपकी बात सुनना चाह रहा हूँ। छोटा भाई अभी आप छोटा भाई अभी आपकी बात मुझे ऑर्डर याद नहीं है, लेकिन ये बिलाल एक इसका पहले माइक बिलाल भाई आप पहले बात कर जो है अच्छा हाँ जी मैं भी बात खत्म नहीं हुई मेरी। नहीं तो आपकी तो बात 2 दिन तक चलती रही है, तो अब हम चले मैं मोशन हो जाता हूँ, ठीक है करें आप बात। फिर बात को कर लेते हैं वो छोटा भाई 1 मिनट दीजिए राजन जल्दी को। हाँ जी मैं ये कह रहा था कि देखें इनका जो इस्लाम है, इनका नहीं मैं कह रहा, जो भी इस्लाम की शक्ल है, सऊदी अरब वाले ईरान के इस्लाम को नहीं मानते, ईरान वाले सऊदी अरब के इस्लाम को नहीं मानते। मुसलमान जो है वो इंडिया में वो सेकुलरिज्म कहते हैं, ये कहते हैं जी हमने अपना शरीयत लेके आने। वो शरीयत कौन सी है, किस फिरके की, वो भी कोई पता नहीं। तो भाई हम इस इस्लाम से दूर हैं, हमारे इस इस्लाम के साथ कोई तल्लुक नहीं। तो हमें भाई आप तशद्दुद का निशाना ना बनाओ, अपना इस्लाम आप अपने पास रखो। शुक्रिया। मेरे ख्याल में मैं मुख्तसर छोटी सी बात करूंगा। यही सारी बात है कि आपने जो बात चल रही थी कि क्यों इन पर पाबंदी लगाती हैं, यही मिसाल है कि जब ये बात करेंगे इस्लाम नफरत की बात करेंगे, मुसलमान नफरत की बात करेंगे, ठीक है। इन्होंने कितनी गलत बयानियाँ बीच में की हैं। वो इसके ज़िबा के ऊपर कि अल्लाह ताला ने उनको भी इजाज़त दी है। बिल्कुल सीधी आयत है कुरान की, सूरह मुनाफ़िक़ून की, इज़ा जाअकुल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीना लकाज़िबून। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इनकी शहादत, मुनाफिकों की शहादत, क्या शहादत दे रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। जब ये मुनाफिक आपके पास आएँ और ये कहें कि आप अल्लाह के गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला ने उस शहादत को भी झूठा कहा है। तो ये वजह है इनकी मुनाफिकत को हम जो है ना जो मना करते हैं इसलिए लेकर आएंगे क्योंकि ये बात पता है उन्होंने सुना कि भाई मैं वजह बता रहा हूँ। इन्होंने अभी ये बात कही कि ये लोग कुरान को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, कितना ये लोग मशहूर करते हैं, जबकि असल हकीकत ये है कि ये मिर्ज़ा साहब के इल्हामात को मानते हैं। वो तशरीह कुरान की जो मिर्ज़ा साहब के इल्हाम ने इनको करके दी है, ये उस चीज़ के पर ईमान लेकर आते हैं, कुरान के पर ईमान लेकर आते हैं।
सॉरी जी, बस इतनी सी बात है कि नाम इनका कुरान का होता है, पीछे जो है असल मिर्ज़ा साहब के इल्हाम होते हैं। कोई भी टॉपिक उठा लें, सब जगह इनके पास जो भी तशरीह है वो मिर्ज़ा साहब के इल्हाम ने तय्युन किया उसकी तशरीह, कुरान की अपनी तशरीह ये लोग नहीं इस्तेमाल करते। चलिए जी, ठीक है, खत्म वो हो गया। भजन वो अमूमन हमारे जो मुसलमानों के फिरके जितने वो ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं। नहीं, किसी का कोई मुसलमान का फिरका अपना इल्हाम नहीं लेकर आता। नहीं सर जी, कोई भी मुसलमान का फिरका अपना इल्हाम नहीं लेकर आता। इनके अंदर हाँ, ये फ़र्क है। जो मुसलमान फ़िरके हैं उनके आपस में अगर कुरान को समझने में भाई आप बात तो चीज़ हो जाती है। आप मुझे ये बताइए कि हम आगे कैसे डील कर सकते हैं, चीन का भी कैसे हम कोएग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं। आप लेकिन उसी बात कोएग्जिस्टेंस के लिए तो हमने 1974 का कानून निकाल दिया ना। ये कोएग्जिस्टेंस के लिए तो था, वरना इन्होंने क्या काम किया हुआ था। इससे पहले कोई मामला थे हमारे इनके साथ, जो कादियान में ये लोग रह रहे थे, वहाँ पर कभी कादियान में किसी ने चढ़ाई की इनके ऊपर। ये मामला कहाँ से शुरू हुआ? जब 1953 में इनके खलीफा ने मुसलमानों के ऊपर हमला करवाया, जब स्टेट विदिन स्टेट इन्होंने बनाना शुरू किया, तब जाके ये मामला खराब हुआ। ये वहाँ पर वो हरकत ना करते तो ये इस तरह के मामला यहाँ पर ना पेश आते। लेकिन राहिल भाई अगर आप मेरे लिए इतने इख्तिलाफात के बावजूद भी तो ज़्यादातर भाई कह रहे हैं बातें छोड़ दी। ठीक है ना, यहाँ पर बात ये हो रही है कि एक शख्स खड़ा होके ये दावा कर रहा है कि मैं वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेइज्जत हूँ जिसके ऊपर मुसलमान ईमान लेकर आते। मुसलमान छोड़ेंगे, उसके बावजूद हमने इनको मौका दिया भाई यहाँ पर आप रब्बा चले जाएँ ना। रब्बा में क्या है, इनकी मस्जिदें मौजूद नहीं है क्या? वहाँ पर इनके ये जो ताहिर हार्ट इंस्टीट्यूट है, क्या ये काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? क्या फर्स्ट ह्यूमैनिटी फर्स्ट वाले काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पर? पाकिस्तान में सब काम कर रहे हैं। आप बहुत प्लीज आप नाम ना लें, नाम ना ले, तो मैं आपको सारे दे दूंगा टाइम हमारे पास नहीं है। नाम क्यों नहीं लेंगे? नाम ना लेना, उसको भी जला देंगे, तो फिर वो उसको भी जवाब देने शुरू कर देंगे, बट आप अपनी राइट है कि आप कैसे कोशिश कर सकते हैं, उसका बताइए क्या आप जो कोएग्जिस्टेंस के लिए जो हमारी तरफ से हो सकता था वो यही है, 1974 का आइन है, उसकी ये पासदारी करें, उसका ये लिहाज करें। अगर उससे इत्तफाक नहीं है इनको तो प्रॉपर चैनल के थ्रू आके उसके खिलाफ ये कार्रवाई करें, ठीक है ना। लेकिन मुल्क बाहर बैठ के ये पाकिस्तान के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ बात करेंगे तो ये फिर ग्राउंड लेवल पे इनके खिलाफ ये चीज़ें होंगी। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सोशल मीडिया पे जो इन्होंने बदतमीजी का बाजार गर्म किया हुआ है ये उसी का नतीजा है, वरना कोई नहीं था मसला। ये लोग पहले भी कुर्बानी कर ही रहे थे ना, इतने सालों में कुर्बानी कर ही रहे थे। ज़िया रसूल भाई बता रहे हैं कि घरों के अंदर करते हैं ये लोग, इतना कोई नहीं मना करता। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आकर जब ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं तब ये मामला जो है ना तो गर्म आप कहें सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना छोड़ दें। सोशल मीडिया के ऊपर देखें, सुने सोशल मीडिया के ऊपर जब ये मामला फिर से शुरू हुए थे, इनके खलीफा ने बयान दिया था कि अपने इनको जमात मुबल्लिगीन को कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत बिल्कुल पाबंदी लगा दी थी इन्होंने। ये कोविड के टाइम की बात में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही एक तरीका है, अपने आप को जो है ना ये काबू करके रखें, ठीक है। और जो पाबंदियाँ इनके ऊपर लगी हुई हैं, जो कानून साजी हुई है, उस कानून साजी का जो है ना ये पासदारी करें, वरना फिर कानून ये तोड़ेंगे तो देख लिया ना, कानून इन्होंने तोड़ा तो बाकी ने भी तोड़ दिया कानून। इरम बाजी आप बात करें। जी इरम बाजी बात नहीं करना चाह रहे हैं, अगर आप लिस्टर पे चले जाएं कि नए लोगों को नहीं अंजलि भाई मुझे ऐड नहीं करना है लोगों को, क्योंकि मैंने मेरा टाइम हो चुका है। मैं ओके सॉरी जो लोग हाथ खड़े बस उन्हीं के जवाब सुन लेंगे। और एक भाई आपसे बहुत बात वेरी वेरी सॉरी, मैं बस बिल्कुल टाइम बस मैं वो चाह रहा कि लोग हाथ खड़ा है। बात हम करना चाह रहे हैं लेकिन टाइम मिलेगा तो हम करेंगे ना बात। भजन रुक गए, थोड़ी देर से किरण बाजी की बात करते हैं, वो बस टाइम आई है उनकी बात सुन लेते हैं। जी बाजी मैं कल से 2-3 स्पेसेस देख रही हूँ जिसमें कहा जाए, एक जो है शख्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अहमदिया कादियानी अपने आप को आत्महत्या करें, और दूसरी तरफ जो है वो कह रही हैं कि मुसलमान आकर वो अपने आप को और वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान आके अपने आप को आई मीन हू द हेल आर यू? आप लोग कौन है जो एक दूसरे से श्योरिटी मांग रहे हैं या एक दूसरे से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि तुम मुस्लिम हो, तुम मुस्लिम नहीं हो, तुम ये हो, तुम अपने आप को डिफेंड करो? आप कौन है? आप खुदा है? आप खुदा है? आप किसी के ईमान का फैसला करेंगे और आप हैं खड़े होकर फैसला देंगे? आप खुदा है? आप किसी के घर में हमला कर देंगे, उसके घर से चीजें निकाल के बात देंगे? कौन है आप? आप मुझे क्या
खुदा को मानता है, जिस खुदा को आप मानते जी हैं, हाँ, म्यूट जिस भी कीजिए। खुदा को मानते हैं, खुदा को मानता है, जिस भी खुदा को मानते हैं, तो एक दूसरे की जाने बख्श दें। थैंक यू। मुझे दीजिए भाई थोड़ा एक मिनट, मैं बात कर सकता हूँ वकील साहब। जी आप म्यूट कीजिएगा। आमिर भाई बात करें। हाँ जी, सर गुजारिश ये है कि ये बातें मिक्सअप कर रहे हैं। देखिए, ये बात दुरुस्त है अपनी जगह पर कि किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई किसी का इस तरह से लिटमस टेस्ट ले, हर बंदा अपनी ईमान का खुद जवाब दे। लेकिन जो लोग इस्लाम और कुफर को मिक्सअप करते हैं तो उनको भी तो किसी ने रोकना है ना। ऐसे तो नहीं है कि तो अल्लाह कौन के रोकेगा? रोके वो ना, जिसके वो कल रोके वो, जिसके पास कुछ भी कुछ नहीं हो। हाँ हाँ सॉरी आवाज़ बहुत एको आ रही है। फिर भाजी जब तक तो बात मुकम्मल करते हैं ना, आप हमें आपके माइक में देखो आती है, हम इसके लिए बात कर लेना है, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। और क्या कहते हैं कि रिस्पॉन्ड कोई ना करे, क्योंकि मतलब रिस्पॉन्ड देने का टाइम एक बंदे का अपना पॉइंट रखना प्लीज आप मदद। जी क्षमा कर रहे हैं, म्यूट किया मैं। ज़ाती तौर पर किसी की कोई नहीं है वो आपसे, लेकिन मसला ये है कि जो बात आप कर रही हैं ना, मैं आपके साथ हूँ इस बात में कि लोग एक दूसरे पर इस तरह से शक करते हैं, भाई शायद ये कादियानी है, ये नहीं भाई, क्यों शक करते हैं? सवाल ये है, कभी आपने इसकी बैकग्राउंड जानने की कोशिश की है? इसलिए शक करते हैं कि कादियानियों ने जा बजा अपनी असल आइडेंटिटी को छुपाकर ऐसी हरकतें की हैं, ऐसे काम किए हैं। अब हर बंदे पर लोगों को शक होता है, यहाँ तक कि आपके निकाह नामे में और वो जो अब अपना पासपोर्ट वगैरह है उसके फॉर्मों में ये चीज़ें डाल दी गई हैं, क्योंकि ये लोग अपनी असली आइडेंटिटी बताते नहीं है, छुपाते हैं। अगर ये काम ना करें तो बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन बातें इस तरह मिक्स हो गई हैं कि कुछ लोग जो है ना वो आपके दीन के अंदर ही ये काम कर रहे हैं, अपने आप को सही बता नहीं रहे और खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर दीन एक अलग है सारा उनका, और वो ज़बरदस्ती आपके दीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। अगर आप लोगों को या हमारे बहनों भाइयों को इनके दीन की जो बुनियादी बातें हैं उनका ना नॉलेज हो, तो इसमें गुस्से वाली कोई बात नहीं, नाराज़ होने वाली बात कोई नहीं। आप उन लोगों से भाई देखिए ये आपके पॉइंट पहले भी इसके बिल्कुल सही है, मैं जवाब दे सकता हूँ, टाइम हमारे पास नहीं। मदद से जब भाई से बात करते हैं चाची और योड़ा भाई से बात करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम यारिया काम को आमिर भाई आपके माइक आपके माइक जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थोड़े से ना सख्त अल्फाज में टैक्सी यहाँ पे रखूँगा कि एक तो सेकुलरिज्म बुरा भला नहीं कह रहा, मैं बात कर रहा हूँ नाम तो इंसानियत का लेते हैं, नाम तो इंसानियत का लेते हैं। सेकुलरिज्म जो एक इंसानियत मजहब बना हुआ है, तो ज़ुबान बाजारी औरतों से भी बदतर होती है। माद रचा पर मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे जो अल्फाज सुने हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि 1974 में जो आइन पास हुआ था, क्या इन लोगों के पास एक चांस नहीं था कि उसको ICJ में जाके उसको रिट करते चैलेंज करते? कभी भी नहीं करेंगे ये चैलेंज, मैं आपको गारंटी के तहत कह रहा हूँ। ये कभी भी जाके ICJ में, जिसका मीर जफरुल्लाह खान जी जो कह रहे हैं वज़ीर आज़म था पाकिस्तान का, वो उस ICJ का जज था, जज रह चुका है, ये कभी भी वहाँ पर जाकर चैलेंज नहीं करेंगे क्योंकि इनके असाइलम बंद हो जाएंगे जर्मनी के अंदर। क्योंकि अगर वहाँ से ये फैसला इनके हक में ना आया, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दलाइल के अंबार पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे दलाइल पड़े हुए हैं कि इनके मुंह पे मारे जा सकते हैं। मैं नफरत करता हूँ इनके अकायद और नजरियात से, लेकिन इनकी इंसानी शख्सियात से मैं कभी भी नफरत नहीं कर सकता। ये इंसान एग्जिस्ट करते हैं, हम इनसे इंसानी लिहाज से मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन अकायद और नजरियात से जो इन्होंने, मैं छोटी सी मिसाल जो अभी आपको आमिर भाई ने दी है, जनाब हकीकतुल कुबरा सलामुन अलैह, नबी पाक की बजात बहुत ऊपर है, जो जनाब हकीकतुल कुबरा सलामुन अलैह को कंपैरिजन करते हैं ये नुसरत जहाँ से, जो इनकी उम्मुल मोमिनीन है। मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ? जो मेरी माँ, जो मोमिनों की माँ है, उसको कंपैरिजन करेंगे उस औरत के साथ जो एक आम सी औरत है। नबी पाक की जात बहुत ऊपर है। और दूसरी चीज, इन्होंने कभी भी, मैं ये कह रहा हूँ, ये कभी भी जाके ये चैलेंज नहीं कर सकते। एक बंदे ने बात की है अन्य साल में कि लंगे खोजा में मंडी बाउंड्री में 2 MD कत्ल हुए हैं। क्या उसका बैकग्राउंड पता है इनको? बिल्कुल भी नहीं पता होगा। वो भी मौलवी के ऊपर केस हुआ है,
लेकिन जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि रिश्ते का मामला था। हर चीज मौलवियों के ऊपर उठा के मार देते हैं। ये चीज, ये फसाद उन्होंने अपने अंदर खुद पैदा किया है, ये फसाद का मूजब बनते हैं। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मैं इनके साथ इंसानी लिहाज से मोहब्बत कर सकता हूँ, लेकिन इनके कायदों नजरिया से मैं बर्मला कह रहा हूँ, मैं नफरत करता हूँ। आप एक फूड चेन ले लें, बर्गर किंग, मैं मान के चाहता हूँ थोड़ी सी बात लंबी करूंगा, आप एक बर्गर किंग ले लें। टाइम नहीं है, मैंने पहले भी अर्ज की थी, मैं माजरत से आप अच्छा, मैं इनका फिर मैं एक छोटा सा मैसेज देता हूँ, मैं केस ओपन करूंगा। अगर किसी के भी कुछ सवालात है, आमन नजीर गुजर, आका का गुलाम या रसूल अमीन, अजीम बादशाह साहब, आपको मोस्ट वेलकम किया जाता है, आप आए। और जो भी अहमदी हज़रात आना चाहते हैं, हमारे साथ डिबेट करना चाहते हैं अकायदों या कायदों नजरियात के ऊपर, आए, हम आपको जवाब देंगे। क्या कहा था लगे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यार रजब भाई, आपको सॉरी, आपको आका भाई को कोई को स्पीकर से रिमूव इसलिए कर रहा था कि मुझे ना सब कंफ्यूजन बहुत हो जी, गया। बहुत शुक्रिया सर, आपने इजाज़त दी है। नहीं आप जनाब भाई, आका भाई आपको भी बहुत शुक्रिया, आप भी आए, धन्यवाद आपका। और आमिर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम भी बात करेंगे, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस वैसे होने से बेहतर है कि आप योडा भाई, सॉरी मैं उस दिन आपकी बात नहीं सुन सकूँगा, आप हालांकि मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, उनसे भी माजरत, सॉरी योडा भाई, बहुत बहुत माजरत। सब में नबूत भाई आपकी पहले बात की जा चुकी थी, आप क्योंकि परिवार पर एमडी भाई रहेगा नहीं, आप थोड़ी देर रुक जाइए। चाचू जी आप बात कर लें। जी, बड़ी मुश्किल से मैं काफ़ी देर से सॉरी ये जो आप मसले की बात करें, मसले का हल तो उसी वक्त निकल जाता है जब आप ये जो इनको जो अगर ये दिल से कबूल करते हैं तो मसले का हल जो है ना ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान का कानून तो चीज़ की इनको कह रहा है कि भाई आओ अपने हक ले लो, अपने हकूक ले लो और इज्जत से रहो पाकिस्तान में। लेकिन ये है कि ये अपने हकूक ना लेने की उन्होंने जिद लगाई हुई है और कह रहे हैं कि हमने जो है ना वो कितना तो आपको जो नजर आ रही है इस बात में कि आपको कोर्ट में बैठे हुए कितना टाइम हो गया और आपने देखा है कि बातमीजी जो गरम अल्फाज है हम लोगों ने इन सबको इज्जत दी है और बजाय ये इज्जत देने के ये बातमीजी कर रहे हैं और हम लोग की बातें कर रहे हैं हमारे साथ। अगर एक भाई ने ये बात की थी अभी कि जी नहीं वो के भाई ने की थी, वो चलिए कोई भी मुझे पता आपकी सरकार में एमडी नहीं है, वो तो नहीं पता। तो लेकिन आप अपनी बात करेंगे ये तो आप को एजुकेशन मसला ये है कि उन्होंने बोला जी कानून को फॉलो करना लाजमी है। अगर आपको कानून फॉलो करना लाजमी है, जेलों में बैठ के कानून बना हुआ है यहूदियों के कत्ले यहाँ पे, आप उस पर पहुँचे दिखाएँ ना, आप इस बात को माइंड में रख लें और बोलें कि मुझे मेरे को कानून का फॉलो करना लाजमी नहीं है और मैं हॉलोकॉस्ट पे बात करूँगा, क़याम करूँगा, दिखाएँ, नहीं कर सकते ना। यहाँ पे आके कानून फॉलो करते हैं, जब ये पाकिस्तान में जाते हैं तो इनको कानून जो है ना याद भी नहीं रहता, तो ये कानून की जो तस्दीर उड़ानी शुरू कर देते हैं। भाई ये मामला जो है ना, ये लोग इन्होंने जो जमीन का अंदाजा उड़ा हुआ है, जो इन्होंने रखवा में सबसे पहले जहाँ से मामला स्टार्ट हुए जो रखवा में इन्होंने 250 स्टूडेंट का कत्लेआम किया था, क्या वो किसी माँ के बच्चे नहीं थे? क्या उनको जीने का हक नहीं था? उनसे क्यों इन लोगों ने जीने का हक नहीं लिया? अब ये जो अब इन्होंने रखवा के अंदर जो रखवा पाकिस्तान में स्टेट के अंदर वहाँ में इसका हकूक नहीं मिलते। अगर हकूक ना मिल रहे होते तो आप जरा प्राइवेट मतलब कोई इंटर तो करके दिखाए, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपना उधर पूरा प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, मतलब मामला है, नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी इन लोगों ने जो हो रहा है ना मजलूमी को नहीं पीटना है। क्यों? इनको इमदाद मिल रही है भाई सब के जब तक ये रहेंगे नहीं, और इमदाद की सूरत में मिलती है जब ये नाम करेंगे। मसला ये है कि ये खुद हाल की तरफ आना नहीं चाहते, ये हाल की तरफ आना नहीं चाहते। मसला सिर्फ इतना है, पाकिस्तान का कानून तो इनको बार बार कहता है कि भाई हमने कानून बना दिया, फॉलो आप लोगों ने करना है और फॉलो करो और अपने लोग और आज़ादी से जियो। लेकिन ये जीना नहीं चाहते। जब एक कानून ने इनको मना किया है कि आप ये मामला नहीं करते, वही बातें बार बार वही बातें बाकियों को भी मौका देना। अरे बाकियों को भी मौका टाइम नहीं है, भाई
جی سمیرا جی آپ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام میں یہ بات کر رہی، یہ 2-3 دن سے وہ تماشا لگا ہوا ہے، مطلب ایک چیز ہے، کیا احمدیوں کا خدا اور ہمارا خدا کیا ڈفرینٹ ہے؟ اگر کوئی چیز کوئی غلط کر رہا ہے تو وہ خدا موجود ہے نا اس کا حساب کتاب کرنے والا. آپ نے ضرور بیچ میں اپنی گھسانی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ بیٹھے ہیں، بڑا غصہ آپ کو چڑھ رہا ہے کہ اس نے اتنی بدتمیزی سے بات کی ہے، اتنے آپ سیکھ پا ہو گئے ہیں، اگلوں کے آپ نے بندے مار دیے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ چپ کر کے بیٹھے رہے. ان کا ارے وہ خدا کو مانے نہ مانے، وہ نبی کو مانے نہ مانے، اس کا آخری پہ ہے، پہلے پہ ہے، آپ کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ کیا آپ مجھے تو ایسے لوگ جو خود اس قسم کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، مجھے وہ خدا کے انکاری لگتے ہیں، کیونکہ ان کو خدا کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے کہ خدا حساب کرنے والا ہے ان کا. اس لیے یہ اپنی اندر گھساتے ہیں کہ ہم فیصلے کریں گے، اور پھر بڑی چرب زبانی، بڑی پھر ایسی ایسی باتیں کریں گے آگے کہ یہ والی آیت لے آتے ہیں، وہ والی حدیث لے آتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. جہاں اپنا آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ ہے وہاں ہولوکاسٹ کی اگزامپل دیتے ہیں، لیکن انہی ممالک کی اچھی باتیں جہاں پہ وہ مذاہب کو ایک سائڈ پہ رکھ کر پرسنل انسانیت پر وہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ مثال آپ دینے سے کتراتے ہیں. انہی ممالک میں آپ ہولوکاسٹ پہ بات نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا یہ کون سی دنیا میں آپ نہیں کر سکتے. میں رہتی ہوں، میں نے کئی دفعہ یہاں پر بات کی ہے. مجھے تو کبھی کسی نے نہیں کہا جائے تیری گردن اتار دیں یا تو یہ ہو جائے، تو نکل اس ملک سے، تیرا یہاں پر لینا دینا کیا ہے. تو خدا کے لیے اپنے خدا پہ بھروسہ رکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی غلط ہے کوئی صحیح ہے تو وہ تو خدا نے کہا ہے کہ میں ہوں اس کا حساب کتاب. پھر روز قیامت پہ آپ بلیو نہیں کرتے ہو، حساب کتاب پہ بلیو نہیں کرتے ہو آپ. تو یہ جو سرٹیفکیٹس ہیں نا، وہ اس کو یہ کرنا چھوڑ دیں، یہ یوں کرتے ہیں، یہ خدا کا یہ خالق کی طرف نہیں مڑنا چاہتے. نہیں مڑنا چاہتے، ان کی مرضی ہے یار، نہیں مڑنا چاہتے ہیں. آپ کیوں ان کو موڑ رہے ہیں؟ آپ نے رائٹ ہینڈ پہ اگر اپنا ایک ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ نے جانا ہے، میں آپ کو پیچھے سے ہانک کرتی رہوں، نہیں تو الٹا مڑ دوں کہ مجھے الٹا مڑنا ہے وہاں پر. آپ کے لیے ہے، مجھے تو وہی راستہ سمجھ آ رہا ہے. تو خدا کے لیے یہ اتنی چھوٹی چھوٹی یہ جو چیزیں آپ نے ابھی تک ذہن، مجھے لگ رہا ہے کوئی 1500-1800 وہ دور جاہلیت نہیں ہوتا تھا 3-4 ہزار سال پہلے، جہاں کچھ مرد بیٹھ کر یہ فیصلے کر رہے ہوتے تھے کس کو جلا دینا ہے، کس کو مار دینا ہے، کس کو رکھنا ہے، کس کو نہیں رکھنا. وہ آج کی صدی میں یہ آپ لوگ یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں. خدا کے لیے جئیں اور جینے دیں. تو آپ خود بہتر فیل کریں گے. اپنا تو آپ نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اپنی نسلوں کا خیال نہیں کیا. تھینک یو. بہت شکریہ سمیرا جی. کوئی جلدی سے آپ کوئی 1 منٹ میں کوئی اس کا کوئی حل بتا سکتی ہیں کہ بس تو حل یہ یہی ہے مانیں کہ گے اپنے جلدی سے کام جلدی. سے کام رکھیں، خدا پہ بھروسہ رکھیں. وہ اللہ پہ جس نے یہ اپنی یہ سارے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، اس پہ بھی تھوڑا کچھ چھوڑ دو یار. سب آپ نے اپنے ہاتھوں میں رکھنا ہے. یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بس میڈم یہ جی اپنے اپنے آپ کام سے کام رکھیں تو معاملات آگے چل کے صحیح جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کام سے کام تو رکھتے نہیں ہیں. ان کو اچھا مزہ نہیں، آتا ہے وہ دوسروں کو کیا نیچے ہوا؟ وہ ہم سب رکھتے ہیں بھائی جان، وہ تو ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، آپ ہم کو سب کی کوئی بات کر رہے یہاں ہیں. پر صرف ایک لیکچر دے رہا ہے کوئی یہاں پہ بیٹھا ہوا؟ سب کے لیے یہ اچھا بات بھائی ہے. وہ مسلمانوں کے لیے، احمدیوں کے لیے، غیر احمدیوں سب کے لیے بات کر رہی ہیں کہ سب کو اپنے اپنے جی معاملات کو انٹرنلی. جی. جی چلیے پاکستان بھائی کا جان، میں قانون اپنا ہے، یہ میں تھریڈ پھر بند کر وہی رہا ہوں بات تاکہ کروں میں گا کہ بہت ہاں جی قانون جو ہے نا جن کا ان کے خلاف ہے، یہ حالانکہ پوری دنیا میں ان کے خلاف ایک ہی قانون ہے، ایک ہی فتویٰ ہے، اچھا لیکن یہ کسی کی بات نہیں تو اچھا کرتے. یہ صرف اب میں پاکستان کی آخر بات میں کرتے ہیں. اور پاکستان ہی جو ہے نا وہی تو کہتا ہے کہ بھئی آپ اپنے کام سے کام رکھیں. آپ اچھا جو ایک یار میں ملک بات کے پہلے ملک میں آپ اپنے ملک کو عقیل چلائیں. صاحب نہیں، یہ عقیل لیکن بات صاحب اس کام سے کام نہ وہاں پہ رکھیں چاچو جی، جو کام آپ ان کو بتا رہے ہیں ان کو ان کے مطابق ان کے کام سے کام رکھنا ہے. آپ کے بتائے ہوئے کام سے کام نہیں رکھنا ہے. آپ نے سنا نہیں ہے ابھی ادھر ایک بندے نے بیٹھ کے بولا کہ آپ اپنا کام رکھیں، ہم اپنا کام رکھیں. اور یہی ہم کہہ رہے ہیں اور یہی قانون کہتا ہے کہ آپ چلیں اپنے ٹھیک ہو کاموں گیا. کو کریں، اچھا دیکھیے کاموں وہ کو روکیں. دیکھیے ابھی تو کنکلوژن لڑائی نہیں نہیں ہو ہوتی. سکے اب گا. میں عقیل میں صاحب کوئی مجھے آپ ذرا کو موقع اپنی دیں پھر آپ بند بھائی جان کر دیں. میں نے اسپیس بند کرنی ہے. میں 3 دوستوں کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں معذرت کرتا ہوں. ارشد بھائی، مہاراجہ بھائی، عمرانہ باجی، باجی ویری سوری. میں ابھی مجھ کو ٹائم نہیں ہے، میں آلریڈی کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ ہوں، مجھے کل کہیں جانا تھا. تو ابھی مجھ سے کال ہوئے گی میری. تو آئی گونا جسٹ اینڈ دس اسپیس ناؤ. انجل بھائی پھر آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کا کمنٹ لے لیں گے. سب نبوت بھائی سوری یار، بہت شکریہ آپ سب کا دوستوں کا میرا. دھنیہ واد. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی کنکلوژن، پتہ نہیں، ٹرائی کریں گے. اوکے دھنیہ اوکے واد. اوکے السلام علیکم.